Good evening, students. We were dealing with chapter number 2, that is sexual reproduction in flowering plants. Now, this chapter can be divided into total 3 headings, that is pre-pollination, pollination, and post-pollination. So, what is pre-pollination? Pre-pollination is whatever happens before pollination. What happens before pollination is the formation of male gametophyte, that is the pollen grain, and the formation of female gametophyte, that is the embryo sac. Second topic was pollination, in which the pollen grain, that is the male gametophyte, is transferred from the anther to the stigma. Now the third topic is post-pollination. Post-pollination is whatever happens after pollination. What happens after the pollen grain reaches the stigma? So that we have to discuss in this topic. For that, I am making the diagram of a carpel. The carpel is the female part. It has a stigma, a style, and a ovary. Inside the ovary there is a ovule. So inside the ovary there is a ovule with its integuments, and a embryo sac which is surrounded by the nucellus. So this is the embryo sac. In the center of the embryo sac there are two haploid nuclei which are known as the polar nuclei, which may remain separate or which may unite into a secondary nucleus. तो ये जो दोनों सेंटर में जो मैंने न्यूक्लियस बनाए हैं ये हैप्लॉइड हैं, मतलब इनमें क्रोमोसोम सिंगल सिंगल हैं. At the chalazial end there are 3 cells which are known as the antipodals, and towards the micropylar end there are 3 cells. 2 are the synergids. The synergid has a finger-like growth in its wall which is known as filiform apparatus, and in the center of these 2 synergids there is a egg cell which is the female gamete. All these cells are haploid, that means haploid nucleus having single chromosome. So this is the female gametophyte which I have drawn in the center, female part, carpel. Now what happens during pollination is that the male gamete or the pollen grain, it reaches the stigma. तो ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का मैंने जो बाहर वाली लेयर बनाई है विच इज़ द एक्साइन, एंड इनसाइड इट देयर इज़ अनदर लेयर विच इज़ द इंटाइन. तो ये पूरा एक सेल आपको दिख रहा है जो मैंने ग्रीन में बनाया, वो उसकी इंटाइन लेयर है, अंदर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा. तो ये जो ग्रीन सेल जो बन गया है, इट इज़ एक्चुअली द ट्यूब सेल प्रेजेंट इनसाइड द पोलन ग्रेन with its haploid nucleus. This tube cell is also known as vegetative cell. Now inside it there is another cell, that another cell is the generative cell. 60% केसेस में पोलन ग्रेन जो है ऐसी सिचुएशन में स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है. उसके अंदर आपको 2 सेल दिख रहे हैं. ग्रीन वाला जो है वो ट्यूब या वेजिटेटिव सेल है, अंदर एक छोटा सेल तैर रहा है, वो जेनरेटिव सेल है. बाकी 40% केसेस में ये जेनरेटिव सेल आगे डिवाइड होके 2 सेल बना चुका होता है विच आर द 2 मेल गैमेट्स. नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, व्हाट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड हियर इज़ दैट ये जो मैंने अभी ये जेनरेटिव सेल बनाया है, इससे 2 मेल गैमेट बनेंगे. वो मेल गैमेट यहाँ फीमेल एग जो मैंने यहाँ रेड में नीचे बनाया है वहाँ तक पहुँचने चाहिए. सो ये अब कैसे होगा, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट है जो मैंने यहाँ पे अभी लेबल किया, और
एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, तो वो कैसे होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. So at some places the pollen grain does not have sporopollenin in its exine and that part are known as germ pore. तो जहाँ मैं ये रेड रब कर रही हूँ पोलन ग्रेन की लाइन, मान लीजिए ये जर्म पोर्स हैं, यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है. So when the pollen grain lands on the stigma, some kind of communication takes place between the pollen and the stigma. ये एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक ही स्पीशीज़ के हैं, क्या पोलन ग्रेन इसके ऊपर जर्मिनेट हो सकता है, केमिकल कम्युनिकेशन होगी, जीन्स की कम्युनिकेशन होगी, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट देन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय जर्मिनेशन इज़ दैट नाउ इफ़ दीज टू आर कंपैटिबल विद ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए सेट हैं, तो जो स्टिग्मा है इट विल मेक अ शुगरी सिक्रीशन. स्टिग्मा एक तरह की सिक्रीशन बनाएगा एंड दैट शुगरी सिक्रीशन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द पोलन ग्रेन. वो इस जर्म पोर के थ्रू ये सिक्रीशन अंदर चली जाएगी. जैसे ही ये सिक्रीशन अंदर जाएगी तो जो वो ग्रीन में मैंने अंदर सेल बनाया है, जो आपको मैंने पहले भी बताया, विच इज़ द ट्यूब सेल, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग. सो एंड इट विल ग्रो एंड इट विल स्वेल एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द जर्म पोर. तो अब मैं ये सेंटर वाला पोर्शन जो है ये मैं रब कर रही हूँ ताकि मैं ये दोबारा बना सकूँ. सो जो पोलन ग्रेन के अंदर जो ये इसका ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल के अंदर एक छोटा सा सेल और है, 2 सेल हैं, तो मैं ये रब कर रही हूँ. सिर्फ एक्साइन पार्ट मैंने रहने दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, तो ये मैं थोड़ा एक्साइन दोबारा बना रही हूँ. अब सिर्फ एक्साइन रह गया पोलन ग्रेन का, और इसके अलावा जितना भी पार्ट था, इसके अलावा था कि अंदर एक ट्यूब सेल था, तो वो ट्यूब सेल जो है वो जर्म पोर से बाहर निकल आया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब विच इज़ नोन एज पोलन ट्यूब. तो ये मैंने सेल का शेप आप देखो एक ट्यूब के फॉर्म में बना दिया. आगे आगे इसका न्यूक्लियस है जो कि एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, और इसके अंदर एक छोटा सेल और है, जेनरेटिव सेल, या फिर 2 मेल गैमेट्स हैं जो कि 40% केसेस में होंगे. तो फिलहाल तो मैं जेनरेटिव सेल बना रही हूँ और ये उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसके अंदर है. नाउ दिस ट्यूब इज नोन एज पोलन ट्यूब एंड नाउ द पोलन ग्रेन इज सेट टू बी जर्मिनेटेड. मतलब ये पोलन ग्रेन अब जर्मिनेट हो चुका है. नाउ इट हैज़ ग्रोन एंड एंटर्ड इनटू द स्टाइल. ये जो ये सेकंड पोर्शन है स्टाइल, इसमें एंटर कर चुका है. दिस स्टाइल मे बी हॉलो, जैसे आपको दिख रही है ऐसे खोखली हो सकती है, या फिर इसमें कुछ सेल्स हो सकते हैं, मतलब सॉलिड स्टाइल हो सकती है. जो भी केस है, अगर हॉलो है तो अपने आप पोलन ट्यूब आगे बढ़ती जाएगी. अगर ये सेल्स हैं जो अंदर मैंने बनाए हैं, ये एक तरह के कनेक्टिव सेल्स हैं, या आपस में पेक्टिन से जुड़े हुए हैं, तो जो पोलन ट्यूब है वो पेक्टिनेज एंजाइम बनाएगी और जो है रास्ता बनाती जाएगी ताकि वो आगे ग्रो कर सके. सो आई एम रबिंग दी सेल्स. हम मान लेते हैं कि ये जो स्टाइल है ये हॉलो है, एंड दिस पोलन ट्यूब इट विल ग्रो. सो दिस पोलन ट्यूब इट विल ग्रो थ्रू द स्टाइल. ये जो है ये ग्रो करती जाएगी और ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी. और इसके अंदर जो इसका कंटेंट है, व्हाट दैट कंटेंट इज़, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, क्योंकि ये ट्यूब सेल है जो लंबा हो रहा है एक ट्यूब के फॉर्म में, तो इसका साइटोप्लाज्म है, इसका न्यूक्लियस है, ये जो आगे मैंने बनाया, और पीछे एक जेनरेटिव सेल है, ये जेनरेटिव सेल, और अंदर उसका न्यूक्लियस. तो अगर अभी तक जेनरेटिव सेल डिवाइड नहीं हुआ था, तो अब इस स्टेज में जेनरेटिव सेल विल डिवाइड बाय माइटोसिस, एंड व्हेन इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस इट विल फॉर्म 2 cells. Those 2 cells are the male gametes और the sperms. तो अब जो है बाकी जितने भी केसेस जहाँ पर अभी तक मेल गैमेट नहीं बना था, वहाँ पे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे.
एंड दीज टू मेल गैमेट्स दे आर द हेप्लॉइड मेल गैमेट्स, ये दोनों बन गए। तो अब आपको ये जो ट्यूब जो ये ग्रो कर रही है इसमें आपको तीन चीज़ें दिख रही हैं। वन इज़ अ मेल गैमेट, सेकेंड इज़ अनदर मेल गैमेट, और आगे जो है ये है न्यूक्लियस ऑफ द ट्यूब सेल। ये तीन चीज़ें हैं। नाउ कई बार ऐसा होता है कि जब स्टाइल जो है ये अगर सॉलिड है तो ये स्क्वीज़ होने लगते हैं अंदर वाले कंटेंट। तो स्क्वीज़ होने के कारण ऐसा हो सकता है कि ये मेल गैमेट पीछे को जाए, तो यहाँ पर एक कैलोस प्लग बन जाता है। कैलोस प्लग, ये जैसे मैंने ये बनाया, जिसके कारण ये जितना भी कंटेंट है ये पीछे नहीं जाता, ये आगे आगे ही रहता है। जैसे जैसे ये ट्यूब लंबी होती जाएगी और कैलोस प्लग बनते जाएंगे। सो सपोज दिस ट्यूब एनलार्जेस, ये यहाँ पे हुई, तो वो जितना भी कंटेंट मैंने बनाया है अंदर वो आगे पहुँच जाएगा, वो आगे पहुँच जाएगा, और यहाँ पर नया कैलोस प्लग आगे की तरफ बन जाएगा ताकि जितना भी कंटेंट है वो सामने ही रहे। सो अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू मेल गैमेट्स, यहाँ पे एक और कैलोस प्लग बन जाएगा ताकि इस जितना भी कंटेंट है ये आगे आगे रहे। नाउ व्हाट विल हैपन इज दिस ट्यूब, दिस पोलन ट्यूब, इट विल एंटर इनटू द ओव्यूल। अब ये ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। नाउ लिसन केयरफुली, देयर आर थ्री places from which this tube can enter. It can either enter through the chalazial end. ये या तो चैलेजल एंड से एंटर करेगी, मैं सिर्फ टिक लगा रही हूँ, वो इस एंड से एंटर कर सकती है। अगर ट्यूब यहाँ से मुड़कर यहाँ से एंटर कर रही है तो हम कहेंगे चैलेजोगैमी। सेकेंड, इट में एंटर थ्रू द इंटेग्यूमेंट, तो ये इंटेग्यूमेंट से भी एंटर कर सकती है। तो जैसे कि मैं अभी आपको एक लाइन बनाकर ये बता देती हूँ, यहाँ से ऐसे एंटर कर सकती है। तो अगर वो यहाँ से एंटर करेगी देन दिस इज नोन एज मीजोगैमी। एंड थर्ड ऑप्शन which is seen in most of the cases is that this tube it will enter through the micropyle। तो ज़्यादातर केसेस में ये ट्यूब जो ऐसे ग्रो होके यहाँ माइक्रोपाइल वाले साइड से एंटर करेगी। So it will enter through the micropyle and this is porogamy. So in most of the cases porogamy happens, that means the tube it enters through the micropyle region, और इसके अंदर जो भी इसका कंटेंट था आगे आगे जो वो ट्यूब न्यूक्लियस था वो डीजेनरेट हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और क्या बचता है, दो मेल गैमेट्स बचते हैं जो मैं यहाँ आगे की तरफ बना रही हूँ। नाउ देयर इज समथिंग इन द synergids or the filiform apparatus of synergids। ये synergid और filiform apparatus एक तरह से डीजनरेट होने लगते हैं, कोई केमिकल रिलीज करते हैं जिसे सेंस करके ये ट्यूब यहाँ तक पहुँचती है और ये synergid के थ्रू जो है एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है। और जैसे ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है दिस ट्यूब विल बर्स्ट, ये ट्यूब यहाँ से बर्स्ट होगी, ये जो synergid है ये डिज़ोल्व हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा और अंदर जो दो मेल गैमेट्स थे पोलन ट्यूब के अंदर, ये दोनों मेल गैमेट्स अब एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाएंगे। द सिनर्जिड्स विल डीजेनरेट, दूसरा सिनर्जिड भी डीजेनरेट हो जाएगा, बचेगा क्या, एक एग सेल। अभी जो दो मेल गैमेट हैं इसमें से वन मेल गैमेट विल गो एंड फ्यूज विद द एग, तो एक मेल गैमेट जो है वो एग से फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये जो एग जो अब हैप्लॉइड था ये डिप्लॉइड हो जाएगा क्योंकि अब इसके अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के कंटेंट मिक्स हो गए हैं, तो अब इसके पास हर एक क्रोमोसोम डबल में आ गई। तो अब ये जो एग है इट इज़ नाउ नोन एज जाइगोट एंड दिस फ्यूजन ऑफ द एग विद द मेल गैमेट इज़ नोन एज सिंगेमी। तो पहला जो ये और इसके बाद ये जो अब रेड में जो आपको ये दिख रहा है ये दिस पार्ट, दिस इज़ अ जाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड और ये सिंगेमी के कारण बना। अभी भी एक मेल गैमेट आपको दिख रहा है जो कि बचा हुआ है,
this male gamete it will go and fuse with the polar nuclei। तो ये जो गैमेट है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो 3 न्यूक्लियस ये तीनों फ्यूज़ होंगे। तो मतलब अब जो न्यूक्लियस बनेगा उसके पास हर क्रोमोसोम के 3 सेट होंगे। सो द मेल गैमेट इट विल गो एंड फ्यूज हेयर। सो द न्यूक्लियस विच इज़ फॉर्म्ड हेयर इट इज़ अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये जो मैं ये वायलेट में न्यूक्लियस बना रही हूँ इसके पास हर क्रोमोसोम के 3 सेट हैं। ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। एंड दिस फ्यूजन इस ट्रिपल फ्यूजन, अभी जो मैंने आपको ये मेल गैमेट की 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन बताई, दिस इज़ द ट्रिपल फ्यूजन। तो एक्चुअली में 2 फर्टिलाइजेशन हुई हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन was between the male gamete and the egg, that was known as syngamy. Second was between the second male gamete and the polar nuclei, that is known as triple fusion. So triple fusion and syngamy together, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुई, यहाँ सिंगमी हुई, इन दोनों को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई है। सो इन एंजियोस्पर्म्स यू विल सी डबल फर्टिलाइजेशन। 2 मेल गैमेट हैं, एक एग से फ्यूज़ होके जाइगोट बना रहा है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होके एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है। तो जो सेंटर में ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया दिस इज़ अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस है और इसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड द 3 एंटीपोडल सेल्स दे विल नाउ डीजेनरेट। ये 3 एंटीपोडल सेल भी डीजेनरेट हो जाएंगे। तो रहा क्या, बचा क्या, 2 सेल बचे। एक तो है ये जो ब्लैक वाला सेल मैंने बनाया था, ये सेंट्रल सेल ये रहा, और इसका न्यूक्लियस कहाँ है, ये जो सेंटर में जो न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये वाला, ये सेंट्रल सेल का ही न्यूक्लियस है। तो ये एक सेल है और इसके अंदर इसके माइक्रोपाइलर एंड पे आपको दूसरा जो सेल दिख रहा है दिस वन, ये जाइगोट है ये। तो मतलब अब ओव्यूल के अंदर आपको जो एम्ब्रियो सैक है दिख रहा है उसमें सिर्फ 2 सेल बचे हैं। एक बड़ा सारा सेल जिसका न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, दैट बिगर सेल दैट सेंट्रल सेल विल नाउ चेंज इनटू एंडोस्पर्म। इसके बाद ये जो सेल है ये एंडोस्पर्म में बदल जाएगा और ये जो इसके माइक्रोपाइलर एंड में जो ये एक सेल दिख रहा है आपको, दिस इज जाइगोट, दिस विल चेंज इनटू एम्ब्रियो एंड दिस ओव्यूल विल चेंज इनटू सीड एंड ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट। तो ये एक रफ जो मैंने आपको आउटलाइन बताई थी, एक तरह से पूरा प्रोसेस जो है आपके सामने डिस्कस किया। नाउ लुक एट दिस डायग्राम सो दैट वी कैन रिवाइज व्हाट हैपन्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुँचा है। पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकल रही है। कई बार ऐसा होता है कि एक पोलन ग्रेन से ज़्यादा ट्यूब्स निकलती हैं, दैट इज़ पॉलीसाइफनी, बट एक ही ट्यूब जो है वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है। जनरली एक पोलन ग्रेन से एक ही ट्यूब निकलती है। दिस पोलन ट्यूब यू कैन सी इट इज़ एंटरिंग थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइलर एंड से एंटर कर रही है, मतलब ये पोरोगैमी हो रहा है। तो जब ये एंटर कर रही है तो इस ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट थे। 1 मेल गैमेट विल गो एंड फ्यूज विद द एग एंड द सेकेंड मेल गैमेट विल गो एंड फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। सो एक मेल गैमेट एग से और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा एंड व्हाट वी विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। जो एंटीपोडल सेल्स थे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, ये एंटीपोडल सेल्स ये डीजेनरेट होंगे। यहाँ पर सिनर्जिड्स डीजेनरेट हो गए, एक हो गया, एक हो रहा है। और जो वो एग सेल है इट हैज़ चेंज इनटू अ डिप्लॉइड जाइगोट। ये जो बड़ा सेल है ये ग्रीन में, ये वाला सेंट्रल सेल,
उसमें एक न्यूक्लियस बन चुका है विच इज़ अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज़ अ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. So this is actually double fertilization because one of the male gamete it fused with the egg and the second male gamete it fused with the polar nuclei. So now have a look at this video in which the process which we have discussed, double fertilization, under the topic post pollination, it has been discussed. So this is a flower. This is a bisexual flower. It has both male and the female parts. The female part, you can see this one is the ovary. Inside the ovary, this one is the functional megaspore cell. The functional megaspore cell had a nucleus. ये जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन की बात चल रही है. तो जो फंक्शनल मेगास्पोर सेल था वो फंक्शनल मेगास्पोर सेल ये रहा. अब ये बड़ा हो रहा है. उसका बीच में वो उसका न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस. इट विल डिवाइड 3 टाइम्स. 4 में से 3 सेल डिजनरेट हो गए थे. मेगास्पोर एनलार्ज हुआ. उसका न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होगा और 8 न्यूक्लियस बने. 3 न्यूक्लियस इसमें से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएंगे, 3 चैलेजल एंड की तरफ जाएंगे, 2 सेंटर की तरफ आएंगे. सो इनसाइड द ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक जिसकी फॉर्मेशन आप देख रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट की. ये 3 एंटीपोडल सेल बन गए चैलेजल एंड पे. और जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे ये 2 सिनर्जिड्स बने. और ये जो सेंटर वाला सेल है दिस इज़ द एग सेल. ये सारे सेल्स, ये जो 6 सेल और जो 7वां सेल बड़ा सेल आपको दिख रहा है, ये सब हैप्लॉइड हैं. जो बड़ा सेल है सेंट्रल सेल, उसके बीच में जो 2 न्यूक्लियस हैं दे आर द पोलर न्यूक्लियाई. दीज 2 आर द पोलर न्यूक्लियाई. नाउ दिस इज इनसाइड द ओव्यूल ऑफ अ ओवरी. In the male part, that is in the stamen, in the anther, there is male gametophyte, that is the pollen grain. ये बहुत सारे pollen grain आपको दिख रहे हैं. In each pollen grain, mostly there are 2 cells. 2 cells हैं. एक वो जो red वाला दिख रहा है that is a generative cell. दूसरे cell का white nucleus दिख रहा था that was a tube cell. Now the pollination is taking place. Pollen grain reaches from the anther to the stigma. It has landed on the stigma. Pollination has taken place. Now a tube grows and all the content enters through the tube. उसमें आपको दिखा 2 मेल गैमेट बन चुके हैं और आगे एक ट्यूब न्यूक्लियस है. ये ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पोरोगैमी. माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करी. ये 2 मेल गैमेट ये बने. दोनों मेल गैमेट आगे की तरफ जा रहे हैं. ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट हो चुका था. एक मेल गैमेट जाकर एग से फ्यूज होगा. दिस इज नोन एज सिंगेमी. एंड व्हाट वी गेट अ डिप्लॉयड जाइगोट. द सेकंड मेल गैमेट इट गोज एंड फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई. एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट अ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज अ ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस. उसमें हर एक क्रोमोसोम के 3 सेट होंगे, तीनों न्यूक्लियस से एक एक. सो दिस was the process of double fertilization in the flowering plants. So this was all for today. Before that, just have a look at the notes which I prepared for this topic. Now these are the notes. जो भी मैंने अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड ये नोट्स हैं. तो हम टॉपिक नंबर 10 तक कर चुके थे. टॉपिक नंबर 11 है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, मतलब पॉलिनेशन के बाद होने वाले इवेंट. इसमें टोटल 2 हेडिंग्स हैं. पहली पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, मतलब पोलन और पिस्टिल के बीच में जो इंटरैक्शन होगी. एंड सेकेंड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के बाद की इवेंट. वो हम बाद में पढ़ेंगे. आज हम पहला टॉपिक ही डिस्कस करेंगे दैट इज़
द पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, जो हम पहले ही कर चुके हैं। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन का मतलब है जब पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर पहुंचा, पिस्टल के स्टिग्मा पर, तो दोनों में केमिकल कोऑर्डिनेशन हुई। अगर दोनों कंपैटिबल हैं तो पोलन जर्मिनेट होगा। पोलन जर्मिनेट होगा मतलब उसके अंदर का जो ट्यूब सेल है वो बाहर निकलेगा एक ट्यूब के फॉर्म में। उस ट्यूब सेल के साथ जो है ट्यूब के अंदर जो है उसका न्यूक्लियस होगा और एक जेनरेटिव सेल होगा या फिर 2 मेल गैमेट्स होंगे। पोलन ट्यूब ग्रो करेगी एंड दैट पोलन ट्यूब विल ग्रो एंड इट विल ग्रो थ्रू द स्टाइल। स्टाइल में भी हॉलो, स्टाइल में भी सॉलिड, जो भी है वो ट्यूब ग्रो करती जाएगी और जो पोलन ट्यूब वो जो है ओव्यूल तक पहुंच जाएगी। अभी तक अगर उसमें जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं हुआ था तो वो भी डिवाइड कर जाएगा और 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। जो आगे ट्यूब सेल का न्यूक्लियस था वो डीजनरेट हो जाएगा। अब पोलन ट्यूब में उसका न्यूक्लियस तो डीजनरेट हो चुका है, सिर्फ 2 मेल गैमेट्स बचे हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, दैट ट्यूब में आइदर एंटर थ्रू द चैलिज़ा, दैट इज नोन एज चैलिज़ोगैमी। वो चैलिज़ा से जो है ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी, वो चैलिज़ोगैमी है। या इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर करेगी, वो मीज़ोगैमी है। या फिर वो माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, दैट इज पोरोगैमी। सो नाउ द पोलन ट्यूब, इट हैज़ रीच्ड द ओव्यूल। नाउ इट विल बी गाइडेड बाय द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के फिलीफॉर्म एम्पैरेटस से किसी तरह के केमिकल शायद रिलीज़ होता है, उससे जो है ये पोलन ट्यूब उस तरफ को जाती है। पोलन ट्यूब बर्स्ट होती है, दोनों मेल गैमेट्स रिलीज़ होते हैं। एक मेल गैमेट एग से फ्यूज़ करता है, दिस इज़ नोन एज सिंगेमी, इसका रिजल्ट है जाइगोट। दूसरा जाकर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होता है, उसका रिजल्ट एक न्यूक्लियस है जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, उसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताया गया है। एंड दीज आर द 3 types. Porogamy, that means the pollen tube, it is entering through the micropyle. Second is chalizogamy, that means the pollen tube, it will enter through chaliza, वो chaliza land से जो है enter करी अंदर. And third one is mesogamy, the pollen tube is entering through the integuments, तो यहाँ से ये enter कर रही है. Next है significance of double fertilization. इससे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, पहला प्रोडक्ट है जाइगोट और दूसरा प्रोडक्ट है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो दैट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो जो सेंटर वाला सेल है वो था सेंट्रल सेल, उसका न्यूक्लियस जो वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। नाउ दिस होल सेल विल चेंज इनटू एन एंडोस्पर्म, वो पूरा सेल एक एंडोस्पर्म में चेंज हो जाएगा और नीचे जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो में चेंज होगा। सो व्हाट डू वी हैव, वी विल हैव ये सेंट्रल सेल था, ये उसका न्यूक्लियस था जो कि ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। ये पूरा सेल एक एंडोस्पर्म में चेंज होगा और यहाँ नीचे एक एग सेल था जो कि जाइगोट बन चुका है। ये जो है ये डिप्लॉइड जाइगोट था, ये धीरे धीरे एक एम्ब्रियो में चेंज होगा, यहाँ से एक नया पौधा निकलना शुरू होगा। तो ये जो एंडोस्पर्म है, ये वाला पूरा सेल ब्लू वाला, ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और ये इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। सो सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, 2 प्रोडक्ट मिले, एक तो एंडोस्पर्म मिला, एक जाइगोट मिला जो कि एम्ब्रियो में चेंज होगा और ये जो सीड्स ज़्यादा देर तक वायबल रहेंगे। दिस प्रोसेस अकर्स ओनली इन एंजियोस्पर्म्स एंड बोथ द गैमेट्स ऑफ द मेल, 2 मेल गैमेट्स से दोनों इस प्रोसेस में यूटिलाइज होंगे। सो दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने पोस्ट पॉलिनेशन का पहला टॉपिक किया है, वो है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, इसके बाद यही होना है कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में बदलेगा और जो सेंट्रल सेल था वो एंडोस्पर्म में बदलेगा। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर।